Hello students, a very warm welcome to everyone, those who have been listening to this lecture, and you know this is a syllabus series of CSAP. We are trying to cover up the entire syllabus of all the 5 papers, right from GS1, 2, 3, 4, 5, both for UPSC as well as APSC. But yes, for UPSC we do not have the GS5, so it will be only applicable for APSC. You know that this is the second lecture, this is the part 2 for syllabus discussion, and we are going to start with the general studies second paper. We are opening up the syllabus. As you can see in front of you, we have the syllabus of GS paper 2, but this is paper 3 because paper 1 is by default essay. All right, so you know that we have in brief governance, constitution, polity, social justice and international relations in our paper 3, that is general studies 2 syllabus. इतना तो सबको पता है कि GS2 is means polity, constitution, governance और international relations और social justice. But इसके अंदर क्या है हमारे पास? We have to see in great details. So let us see each and every part of the syllabus of GS paper 2 in details now. All right, so we have first, that is the Indian Constitution, right? You know this, that we have Indian, and you know that I'll be also showing it to you, right, what we are covering it up in the syllabus, so that you have some idea on what we are covering it up. And you know that we have this Indian polity section, and we have already started with Indian polity, and you know that we have covered by now till 14 lectures, right? All these are available. So you know that we have started with like the making of the Indian Constitution, then we have the preamble part, then features of Indian Constitution, then amendment. These lectures we have already covered. Then we have the parliamentary and presidential system, then we have unitary and federal features, union and its territories, fundamental rights, that we have started, and from the lecture 15 we will be continuing with fundamental rights. Now you know that in this lecture series of Indian polity we are covering the entire Lakshmikant. Okay, we are covering end to end, point to point, word to word, everything of Lakshmikant. So this lecture series will be obviously very crucial for all of you. So you know that we have already will be covering all these things. Historical underpinnings, this will be also there. You can see that this historical underpinnings, okay, this means the evolution features. That means this talks about what? This talks about the constitutional development. And if you can see under our Indian history, that is your modern Indian history lecture series, that is here, this is the modern Indian history. This is as per our app, okay, CSAP app, which is available in Play Store. So you know that in this lecture number 17, if you go and see lecture 17, you can see here that this is the constitutional developments. All right, so this is only what is dealing with the syllabus first part. So you know that we already have this evolution features. You can see that just now we saw. Then amendments, significant provisions and basic structure, ये सब हमने already discuss किया, right? Because you know that in the Indian polity lecture series जो हमने cover किया है आपके साथ, वहाँ पे आप देख सकते हो कि this chapters like amendment, okay, इसी में हमारा basic structure भी हमने बहुत brief में understand किया है and explain किया है, right? So you can see that first part of the syllabus has been already covered and it is finished. Then we have the functions and responsibilities of the union and states, issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of powers, finances up to local levels and challenges therein. So these chapters will be coming up when we will be discussing about the executive center state relations, panchayat, municipalities, okay, state executive, central executive. So ये part 2 of Lakshmikant में है, and this will be not in part 2, sorry, part 3, okay, unit 3 of Lakshmikant we have this, and we will be covering it up, not only in unit 3 but also in unit 4 and 5 respectively. So then we have the separation of power between various organs, disputes, redressal mechanisms and institutions. ठीक है, ये सारे चीज़ें आपका पॉलिटी का पार्ट है, राइट? एंड कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज. नाउ इसमें आपको पता है कि हमने इसमें आपको पता है कि चैप्टर वाइज, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स, तो हमने उसमें देखा है कि प्रेसिडेंशियल सेटअप, पार्लियामेंट्री सेटअप में वी हैव कंपेयर्ड विद द नाउ व्हेन दिस
part 4 is talking about the comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. Basically it talks about the comparison with UK constitution and USA constitution, and हर एक point में मैं आपको comparison बताने की कोशिश करता हूँ. And you know that if you have heard about our lectures in the app as of now, so you know that we have already started to compare our constitution. ठीक है, so this will be there in all the lectures. ठीक है, तो ये आपको वैसे प्रिपेयर करना है. एट द एंड वी माइट ऑल्सो गिव यू अ सेपरेट राइट आउट एंड हैंड आउट फॉर दिस. But apart from that, if you see the other lectures like parliament and state legislature structure, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत का ही सिलेबस है. ठीक है, ये सब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे ये सब, तो उसमें सारे स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बढ़िया से देखेंगे. और ये सब कुछ आपका इसी लेक्चर सीरीज़ में, इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ जो आपका ऐप में है, उसी में आपको अवेलेबल मिलेगा. देन वी हैव द स्ट्रक्चर. नाउ यू प्लीज़ सी द सिलेबस. ठीक है, क्या क्या है आप देखिए. ये देखिए आप लक्ष्मीकांत के हिसाब से सिलेबस में भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सेपरेशन ऑफ पावर, यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, बट इसका सारे चैलेंजेस, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर रिलेटेड मतलब क्या, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ फेडरलिज्म एस्पेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ओके, नीति आयोग इज़ एन एग्जाम्पल, GST इज़ एन एग्जाम्पल. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें. बट लेट अस सी कि हम नाउ इसमें सिर्फ आपको पता है कि क्वेश्चंस जो आते हैं मेंस में, दिस इज़ नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन. इसमें मेंस मतलब न्यूज़पेपर का एडिटोरियल से भी क्वेश्चंस आते हैं. एंड दैट इज़ वाई वी हैव फॉर यू GS2. जैसे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने GS1 का दिखाया था, आप देखिए बहुत बढ़िया अभी. ठीक है, इसमें आप देखिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर, यही हम देख रहे थे राइट. एज ऑफ नाउ you see this what we have under this as a compilation for all of you. Now this lectures will be covering in a separate manner, okay, not for in the Lakshmikant. तो इसमें आप देखिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट है. ठीक है, and how it will. तो अभी जो मैंने आपको बोला, ऑलराइट, अभी जो मैंने आपको बोला कि सिलेबस को सिर्फ पढ़ना, नाउ वी आर आई एम ओनली रीडिंग इट, बट इसको थोड़ा सा भी हम समझते हैं. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. ओके, तो एक छोटा सा पार्ट को मैंने उठाया है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, राइट. Yes or no, आपके सामने ही मैंने खोला है. दिस विल बी योर हैंडआउट्स ऑल्सो, क्लास नोट्स ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट आई हैव ओपन अप फॉर यू, राइट. आप देख सो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन. तो ये सिलेबस का एक पार्ट है. आर गेटिंग इट? सी दिस डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन. सो कॉमा के बाद जो भी आता है, आई एम कंसिडरिंग इट टू बी वन पार्ट, एंड दैट इज़ वाई वी हैव ऑल द लेक्चर्स. सो आप देखिए GS2 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. तो इसका मैंने सिर्फ अभी एक पार्ट खोला है, दैट इज़ योर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स. सो नाउ प्लीज़ सी दिस इंडेक्स पार्ट. इसमें आप देखिए नो पंचायती राज. तो टॉपिक क्या है, एक बार फिर से टॉपिक समझे, डिवोल्यूशन ऑफ पावर. सो आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू द फेडरलिज्म पार्ट, राइट, इन द लेक्चर सीरीज ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी इन द ऐप. एंड वहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब आपको समझ में आता है कि सेंटर, स्टेट और थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस सेटअप, दैट इज योर पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज इन द टाउन्स एंड पंचायत इन द विलेजेस. तो इसमें चैलेंजेस क्या है, फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी आप देखिए. ठीक है, नो पंचायती राज इज़ बेटर देन नो पंचायती, मतलब पंचायती राज नहीं होने से बेटर है इज देन बैड पंचायती राज. ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ पंचायती राज, बिकॉज आपको पता है 93 के बाद, ओके, 2018 में we had our silver jubilee. Discuss we have through democratic decentralization. So this is how the questions are coming. पंचायती राज के ऊपर decentralization of our, now you understand what is decentralization, right? Because सेंटर के थ्रू पावर्स अभी किसके पास आया है, डिसेंट्रलाइज होके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास. तो एक स्टेटमेंट ऐसे दे दिया कि नो पंचायती राज इज़ बेटर देन बैड पंचायती राज, मतलब खराब पंचायती राज रहने से अच्छा क्या है कि पंचायती राज रहे ना. ठीक है, तो हमें डिस्कस करने बोला है कि डू यू हैव थ्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल यू राइट. वही पंचायती राज तो हम पढ़ेंगे, आर गेटिंग इट, लक्ष्मीकांत से, लेकिन इसका अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो, और अगर वहाँ पे भी नहीं आया तो इंटरव्यू में पूछ लिया तो. ठीक है, तो अगर अभी सपोज मान लीजिए इसका हम आंसर देखते हैं. ठीक है, लेट अस सी द आंसर हियर एंड यू कैन सी दैट बैकग्राउंड हम लिखेंगे इसमें बिकॉज 25 ईयर्स हुआ है, 73rd 74th. ठीक है, दिस नाउ विल सी द पॉजिटिव्स. ठीक है, डिस्कस करने बोला है ना, तो पॉजिटिव्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि इट इज़ सीन एज विजुअलाइज मीन्स ऑफ एम्पावरिंग पीपल एंड इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. येस और नो, गाँव लेवल में
अगर आप सोचें कि सेंटर ही यूनिटरी फीचर्स, यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बायस्ड टुवर्ड्स द यूनियन, अगर सारे पावर यूनियन में रहता तो क्या पंचायत के पास पावर रहता? नहीं रहता ना। लेकिन अभी पंचायत डेवलप होने के बाद now we have empowered the people and also involved them in the decision making process. First point. Second, grassroots representations है, yes or no? Marginalized section of people, women, SC, ST, OBC, सब लोग अभी इसमें लीडर्स बन सकते। और आपको पता है कि पंचायती एक्ट के अंदर 33% रिजर्वेशन भी है, किसके लिए? वुमेन के लिए। आर यू गेटिंग इट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोल्यूशन ऑफ पावर, तो आपको इस लेवल तक इमेजिन करना पड़ेगा कि हम, और अभी अगर फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर में ऐसा एक पॉइंट मिल गया, न्यूज़ मिल गया, तो क्या आप इसको रिलेट कर पाओगे इसके साथ? ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप द मोमेंट यू आर रेडी विथ योर सिलेबस, आपका 20-30% प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट डन। ओके, तो सिलेबस को बहुत डिटेल्स में समझना और उसको इमेजिन करना और इंटर रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आप देख सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देन न्यू सिस्टम ब्रिंग्स ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू हैव वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, ग्राम सभा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, देन एक्टिविटी इन मैपिंग एंड अमेंडेड द पंचायती म्यूनिसिपल एक्ट्स, तो ये भी हम केरला का एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। तो लेकिन अभी इश्यूज़ भी है ना इसमें, बिकॉज उसमें पूछा क्या हमारे पास प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? ऑलराइट, तो आफ्टर अ क्वार्टर सेंचुरी, राइट, क्वार्टर सेंचुरी मतलब 25 साल दिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज ओनली 2%, तो यही चैलेंजेस है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है अभी भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ओईसीडी कंट्रीज या फिर चाइना में आप देख सकते हो 11% है, ब्राज़ील में 7% है। तो दीज आर व्हाट यू हैव टू ब्रिंग अप विद एग्जांपल्स एंड कंपैरिजन, तो आपको ये सब पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ऑन अदरवाइज ऑन व्हाट बेसिस यू विल से दैट वी आर प्रोवाइडिंग लो? अगर पता चला कि यूएसए या फिर अदर डेवलप कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग 1%, 1.5%, तब तो हमारे लिए ठीक है, तो हम नहीं लिख सकते। लेकिन हमें एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में इतना इतना परसेंटेज का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली कम है, 2% बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए ये सब जब डिस्कस करके आप पढ़ते हो ना, ये सब चीज़ें आपका दिमाग में बैठ जाता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट द पॉइंट्स इन द एग्जाम। सो ऐसे स्ट्रक्चर्ड वाइज, और देखिए आप देखिए ऐसा इस टॉपिक के लिए इतना कंटेंट, देखिए 15 पेज का कंटेंट है ओनली फॉर दिस टॉपिक। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट ओनली फ्रॉम, दिस इज़ ओनली फ्रॉम 18-19। ठीक है, आपको अगर पता है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वी ऑल्सो हैव फॉर द 2017। ठीक है, 2017 में आप GS2 में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डिवोल्यूशन वाला टॉपिक मिलेगा इसमें। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाई नाउ वी आर नॉट कवरिंग, बिकॉज ये थोड़ा पुराना हो चुका है। अदरवाइज अगर चाहिए होगा तो हम आई विल ऑल्सो कवर दैट पोर्शन, बट एज ऑफ नाउ लेट अस फोकस ऑन 18, 19, 20 का ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है अभी। ठीक है, उसके साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा। सो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स में वी हैव सीन दिस। ठीक है, तो आप देखिए कितना बढ़िया से इसमें रोल ऑफ स्टेट्स के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम है। देन नो ऑपरेशनल मीनिंग, इसमें आप देख सकते हो एज द कॉन्स्ट्रक्शन अमेंडमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट लिस्ट फॉर लोकल गवर्नमेंट्स। ऑलराइट, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू क्या सेपरेट लोकल गवर्नमेंट का सेपरेट लिस्ट है? देखिए ये सब हम सोचते नहीं है, लेकिन ये सब एडिटोरियल्स में आते हैं। हमारे शेड्यूल 7 जो है उसमें क्या क्या है, सेंटर है, स्टेट है और कॉन्करेंट है। लोकल गवर्नमेंट के लिए तो अलग से लिस्ट नहीं है ना, लेकिन 11 शेड्यूल में कुछ लिस्ट, एक लिस्ट है जिसमें 29 सब्जेक्ट्स बोला गया है फॉर PRI, लेकिन शेड्यूल 7 में मेंशन नहीं है। ठीक है, एंड 12th शेड्यूल में आपका म्यूनिसिपलिटीज़ के लिए, बट दे डू नॉट कैरी एनी ऑपरेशनल मीनिंग बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द लोकल फंक्शंस आर व्हाट, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ सच पावर मिलता ही नहीं है, मतलब सिर्फ मेंशन है लेकिन ऑपरेशनल मीनिंग कुछ नहीं है उसमें। तो क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ ना। सो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा, बट सिंपल लक्ष्मीकांत पढ़ने से, दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से, अगर ऐसा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और देखिए ये अप्लाइड बेस्ड क्या है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि पंचायत राज है हमारे पास, लेकिन व्हाट आर द चैलेंजेस। या फिर आप बोलिए कि कोविड-19 के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, यू ऑल नो दैट, राइट, बट व्हाट वर द चैलेंजेस दैट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फेस्ड। अगर वो भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही इसी क्वेश्चन से आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उसमें आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा एज सच लाइक एम्पावरमेंट इज़ नॉट देयर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द like the thing of like we do not have the separate lists, right, we do not have the separate
like the list under schedule 7, though we have it under, for example, schedule 11 and 12, but those you can say that in simple words, those do not have any operational meaning. So this is also applicable for any question that will come based on पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और म्यूनिसिपलिटीज़. सो दिस इज़ नॉट लाइक, और देखिए वो आपका कोविड-19 के साथ भी रिलेट होके आ सकता है, या फिर इट कैन ऑल्सो कम थ्रू, फॉर एग्जाम्पल, थ्रू सम डिफरेंट टॉपिक्स that may not be a COVID-19 topic. It may be something related to women, or it may be something related to health, or it may be something related to agriculture, or the farmers improvement. ठीक है, उसमें भी आप अगर उसके साथ अगर आपका डिवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चन आता है, सो दीज आर ऑल जनरल पॉइंट्स, आपको ये सब लिखना पड़ेगा. और गेटिंग इट, दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर टू कवर द न्यूज़पेपर्स. देन फिर आप रोल ऑफ स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा देख सकते हो. ठीक है, बिकॉज जो MP लेड MLA लेड फंड है लोकल एरिया डेवलपमेंट, दैट कंटिन्यू टू बाईपास द लोकल गवर्नमेंट्स, बिकॉज वो सारे आपका स्टेट का कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल्स में होता है. सो दैट इज बाईपासिंग द लोकल गवर्नमेंट्स. ऑल राइट, देन जो कोर फंक्शंस है जैसे आपका वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड एवरीथिंग, ओके, दोज कंटिन्यू टू बी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के पास वो पावर नहीं है. ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो अबाउट द मिशन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स. ठीक है, ऑल दोज आर डैम्पनिंग द स्मूथ ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. So this is how we develop the concept, okay, and this is how now you will be able to have a better understanding and understanding in a depth, okay, in a depth and manner when you compare these particular things, when you read something from the current affairs, or when you read some points from some magazine and you relate this part with the syllabus. For example, one scheme is coming and उसमें ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि दिस इज लाइक द चैलेंजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस. नाउ द पॉइंट इज वेदर यू आर एबल टू रिलेट दैट आर्टिकल विद दिस टॉपिक ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर. नाउ आप लोग ऑनेस्टली हमें बताइए कि जब हम GS2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं, या फिर व्हेन यू थिंक ऑफ GS2, हाउ मेनी ऑफ यू वेर अवेयर अबाउट दिस टॉपिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर, एंड हाउ मेनी ऑफ यू वेर अवेयर ऑफ interlinking, for example, this challenge of less amount of GDP contribution for local self government with this part of syllabus. ठीक है, I might be wrong, but I'm very sure that almost lot of people were not very sure how to relate this. Okay, so this is very important, and that is why you see the syllabus is so well written. Syllabus is analyzed or maybe given in such a beautiful manner that is very important for you to understand the linkage of each and every part of the sub part of the syllabus, that why it is given and how it is important from various dimensions. And this is how also you need to develop a proper understanding in a depth manner. Okay, and also see, this is also talking about finances up to local levels and challenges therein. So हमने एक ही आर्टिकल से हमने देखा है कि दो तीन important challenges दिखे, right? But this is not what only the content we have. If you see, we have discussed about this question. Then we have again talked about like the 73rd and 74th constitutional amendments have remained as unfinished agenda. How does it hinder the accomplishment of economic democracy, and is it not discussing with your finances up to local levels and challenges therein? Are you getting it? So you can see this. So this question is also dealing with the economic democracy, how we are also hindering in the accomplishment. मतलब अभी तक ये फुलफिल नहीं हुआ. So आप देखिए इसका आंसर में भी आप देख सकते हो कि this is point number 3, and इसमें आप you can see that इसमें we can talk about the economic democracy. This is the question, right? So इसमें आप देखो the systematic issues है, state finance commission are not as effective as the central finance commission. So you have to write, this is again a constitutional body. We see finance commission will be discussing, okay, it is there in Lakshmikant, it is there within the constitutional bodies, we will discuss, but these dynamic aspects, okay, these dynamic aspects we won't be discussing in the Lakshmikant. Now this will be covered in detailed manner in the mains classes. All right, so ये सारी चीज़ें लेकिन आपको इंटररिलेट करना बहुत ज़रूरी है, and that is why I am always requesting you to have a brief idea about the syllabus. और syllabus मतलब आप सिर्फ ये पता होने से नहीं चलेगा कि this topic is there, you should also know that इस topic का मतलब क्या है. Are you getting it? Let me pick up something else. Now I hope you've understood the devolution of power वाला point. ठीक है, apart from that, if you see some other aspect of the syllabus, for example, I'll show you an example, one more. For example, let us talk about the separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions.
Yes, so let us see this topic. Let me pick up this topic. Let me see where is this one. Okay, this is, you can see, separation of powers between various organs, right? Dispute redressal mechanisms and needs. Let me open this up for you and let me see the show you the index what we have from the newspaper, and you can see again we have 7 important dimensions on this topic itself. Okay, so you can see, in the light of recent events, analyze how the relationship between parliament and judiciary has evolved over the years. Are you getting it? So you have to understand, and if you are thorough with the previous lectures of which is available in our app, आपको याद होगा कि हमने discuss किया था about the evolution between fundamental rights and DPSP and how it evolved through different cases like Golaknath case or through your Keswananda Bharti case or through Minerva Mills case or through Champakaran Dorarajan case. I had also given you examples like Bomai case, right? तो ये सारे cases में आपको I always try to explain it to you about the separation of power theory between parliament and executive on one side and the judiciary on the other side, right? So this is again, see, this type of questions are also coming in the exams. Then critically analyze whether the process of removal of judges in India needs to be revised, okay? Because उसमें legislature, because आपको पता है when we'll study the Supreme Court and the High Court, उसमें जब removal of judges पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि removal of judges का जो procedure है, ओके, दैट इज उसमें आपका लेजिस्लेचर इज इन्वॉल्व, पार्लियामेंट इज इन्वॉल्व. सो क्या उसमें सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी मेंटेन हुआ? नहीं हुआ ना, बिकॉज आपको मैंने बोला था कुछ दिन पहले इन आवर पॉलिटी लेक्चर्स इटसेल्फ कि जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए जो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल आया था, okay, that has been repealed by the Supreme Court on the basis that it is violating the basic structure doctrine as highlighted by the Keswananda Bharti case. उसमें बोला गया है कि अगर, बिकॉज उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज बीइंग वायलेटेड, right, and independence of judiciary is considered to be a part of the basic structure doctrine. All right, so it's very important for all of you to understand this part, okay, all of you to understand this part in great details. So आपको, for example, if I ask you that this separation of power between various organs, redressal mechanisms and institutions, तो इसमें आपको इसका understanding होना बहुत ज़रूरी है कि what type of questions can come, and this you will only realize when you will be going through different questions, okay, or through different, for example, or for example, like when you will be looking at different newspaper editorials, right? So for example, और अगर हम देखते चलिए, some of the issues faced by Indian judiciary today are in fact recurring problems left unaddressed for decades. ठीक है, now examine, for example, now if you do not have any idea, so how will you solve this type of questions? ठीक है, for example, इसका अगर हम आपको answers दिखाते हैं, for example, if I show it to you the answers of this dimension, so you can see here, all right. So see the various issues and analyze how the relationship between parliament and judiciary has evolved over the years. So here you can see that judiciary's responsibilities, powers, everything, judicial independence, ठीक है, इसमें आप cases का भी example दे सकते हो, powers and immunity from court proceedings, ठीक है, members of parliament and everything. This, now see, these are applications, are getting it? ये सारी issues है, limitations of parliament's power to amend the constitution, ठीक है, बिकॉज ओवर द ईयर्स, और इसमें इसी में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट केशवानंदा भारती केस, बिकॉज अमेंडमेंट में दो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर दिया गया, बट इट कैन नॉट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सो देयर आर लिमिटेशंस ऑल्सो. देन जुडिशरी के ऊपर ये सारे पार्ट है, ठीक है. देन जुडिशियल रिव्यू, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पावर टू अपॉइंट जजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, ना ये 4-5 पॉइंट अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाता है आफ्टर द बेसिक रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत, then definitely you can answer this type of questions in a very, और देखिए इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होने से आपके लिए भी बहुत ज़्यादा like beneficial रहेगा. Alright, for example, if I tell you some other questions, for example, like जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि examine how the organizational barriers and court processes that contribute to case delay in India, ठीक है, मतलब ये बिकॉज आपको पता है कि जुडिशरी में ऑलमोस्ट मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग एज ऑफ नाउ, तो इसके ऊपर व्हाट आर फैक्टर्स रिलेटिंग टू द केस डिले. सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है, अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट अगेन इसका सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, ठीक है. तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन इशूज फेस बाय इंडियन जुडिशरी टुडे, ठीक है. देन अंडर ट्रायल्स, एवरीथिंग केसेस तक, अनसर्टेनिटी, केस लिस्टिंग, एडजॉर्नमेंट्स, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज ऑलवेज एन इशू, ठीक है, अभी तो जजेस में जज अपॉइंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड विद द सिलेबस. तो आपको पता हो ना, देखिए अब इसी में इतने सारे चीज़ें जो लाइक इट कैन बी इंक्लूडेड. डिड यू हैव एन आइडिया? इफ़ यू आर नॉट हैविंग, देन इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट हैविंग द आइडिया अबाउट दिस.
ठीक है. देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यू ऑलरेडी नो दिस. देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नाउ दिस आर स्टैटिक पोर्शन सिलेबस, ठीक है, इसमें आपका लाइक अगर डायनेमिक पोर्शन से आता है डेफिनेटली विल सी दैट. देन दिस आर व्हाट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अभी लेजिस्लेचर हो गया, ये एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन है, यस और नो, एग्जीक्यूटिव भी है. देन सेल इन फॉर्सेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो ये भी सिलेबस में रहेगा डेफिनेटली, ओके, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड वी ऑल्सो हैव दिस. लेट मी सी इफ वी हैव एनीथिंग अंडर दिस, एंड यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ टॉपिक, एंड सी इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे कंटेंट है फ्रॉम द न्यूज़पेपर. तो आपको और क्या पढ़ना है आप बताइए. वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 18 questions. Are you getting it? So you can see that what is an exit poll. Now this is as per the again Representations of People Act. We have like say service voter, ठीक है, how can he cast vote. So these are all issues of electoral bonds, ठीक है, ये Representation of People Act. Then corruption in India, election finance, ये सब आपका नोटा जो है, ठीक है, नोटा जो आप किसी को भी वोट नहीं भी दे सकते हो, नोटा यू कैन क्लिक, ठीक है, ये सारे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, okay, all these things we can see under this part. So now suppose Representation of People Act, free and fair election, EVM machine, ठीक है, discuss how Representation of People Act 1951 is different from the provisions related to elections in Constitution of India. Alright, then again you can see this Representation of People Act 1951 is different from the provisions, sorry, you can see that how the Representation of People Act 1951 serves as a backbone of Indian electoral system. ये सारे नाउ इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग इट, ठीक है, इसका देखिए आप अभी इसके लिए आपको एक किताब नहीं पढ़ना है. आर यू गेटिंग इट? यू जस्ट नो द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है, एंड दिस इज हाउ ऑल्सो विल बी डीलिंग एवरी टॉपिक आफ्टर द स्टैटिक एंड द बेसिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस इज ओवर. विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस applied questions also with you all, and this is how you'll be developing a great confidence in your mains along with prelims, ठीक है, and that is why आपके लिए बहुत important. Now you will be talking about salient features of Representation of People Act. तो आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो क्या करोगे, या फिर आपको कोई बोलेगा तो दे विल जस्ट हाईलाइट विकीपीडिया, फिर यू विल जस्ट ओपन अप अ वेबसाइट और उसमें फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. नाउ दैट इज़ अ वेरी बिग एक्ट, आप कितना सारे चीज़ें पढ़ोगे, बट उससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज हाउ दैट आई शोड इट टू यू. दिस इज हाउ द क्वेश्चंस विल बी कमिंग एंड विल बी फ्रेम्ड अप इन योर एग्जाम ऑल्सो. सो दैट इज़ वाई आपका ये अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो सकता है जब न्यूज़पेपर. लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से आप अभी इफ़ यू आर अ बिगिनर इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर यू टू कंप्लीट योर न्यूज़पेपर लाइक दिस, ठीक है. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to have a very deep understanding and a strong interrelation and connection of the newspaper along with the syllabus, ठीक है. तो अभी कल से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर एनी टॉपिक यू कम अक्रॉस इन आवर क्लास, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको सिलेबस का एक पार्ट के साथ रिलेट करो, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन दिस स्पेशल क्लासेस ऑफ सिलेबस डिस्कशन. ओके, दिस इज आवर सिलेबस सीरीज एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, ठीक है, एंड टुमारो विल बी कमिंग अप विद द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द सिलेबस डिस्कशन. सो प्लीज सी दिस सिलेबस दैट इन दिस डिटेल्ड मैनर कि क्या क्या है. अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर एबल टू गेट इट. ऑल राइट, सो दैट इज वाई दिस understanding in detail analysis is very important. Now for example, if you talk about the appointment of to various constitutional posts, powers, functions, responsibilities of various constitutional bodies. Now this is also, now आपको पता है कि जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, now this is not covered as of now in our online lectures, ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है. तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे हम, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, ठीक है, देन कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, then you have the finance commission, then you have like bodies like National Commission of Scheduled Caste, National Commission of Scheduled Tribe, National Commission of Other Backward Classes, Officer of Linguistic Minorities. ये सारे चीज़ें जब हम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे, लेकिन इसमें आप फिर थोड़ा सा देखिए कि फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट वाला, इसमें आप देख सकते हो ये पहला टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं कि व्हाट वी कैन पिक अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज ऑफ नाउ, ठीक है. तो आप देख सकते हो इसमें वी हैव सम 6 टॉपिक्स अंडर दिस टॉपिक, एंड यू कैन सी दैट what were the objectives of Food Safety and Standards Act 2006. Recently the CAG released an audit report on the implementation of Food Safety and Standards Act 2006. Examine its findings and recommendations. So this is a topic that is related with CAG, and I had already told you that आपका क्या है, आपका
कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो पोस्ट पावर्स फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो जैसे आप ये एडिटोरियल पढ़ते हो तो क्या आपको पता चला कि कैग का फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के रिलेटेड भी आपका एक ऑडिटिंग का उनका लाइक उनका फंक्शन है, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस, यू सी दिस। लेकिन क्या आप इसको रिलेट कर रहे थे? क्या आप ये responsibilities of various constitutional bodies? Now CAG is a constitutional body under what? Under Article 148. Okay, under Article 148. So that is very important कि अंडर आर्टिकल 48 के अंदर अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैग का और FSSAI का क्या इंटर रिलेशन है, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अबाउट लाइक एग्जामाइन इंडियाज रेस्पॉन्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। ये ठीक है, अभी ये साइमन कमीशन थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है, बट अगेन दिस क्वेश्चन वी हैव एडेड इट हियर बिकॉज इट हैज सम रिलेशन विद द टॉपिक। However, like preamble, now this should not be here. This is like a misplacement of the question, ठीक है। For example, आप इसमें देख सकते हो, how do courts or election commission decide whether MP or MLA has profited from an office, ठीक है। What is office of profit? Now this is a part of the syllabus and this is also a important topic of your GS paper 2 syllabus. So MP MLA का profit of office of profit and election commission का, ठीक है। नाउ यू नो दैट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो उनका और वेदर MP और MLA इज प्रॉफिटेड फ्रॉम एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज इट? सो दैट इज पार्ट ऑल्सो बीइंग कवर्ड इन अंडर दिस बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो इसमें आपको देखना बहुत जरूरी है इसलिए, एंड दिस इज हाउ विल बी कवरिंग इट अप। For example, next topic that we have the statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. तो इसमें भी आपको पता है कि various statutory bodies are like SEBI, RBI, ठीक है, IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, ठीक है। Now all these topics are there. For example, इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी बहुत सारे questions आपको current affairs से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। Now आप देख सकते हो इसमें we have like a well-informed public can serve as a watchdog more effectively than existing banking regulatory bodies, ठीक है। तो मतलब बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज और सिविल सोसाइटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। देन RBI के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन पेमेंट बैंक्स, ठीक है। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिस इज ऑल्सो बिकॉज वी हैव अ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, राइट। वी हैव अ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट ऑफ 1993 और उसके साथ दिस हैज़ बीन डन। देन यू हैव CBI, राइट, बिकॉज आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर CBI का रोल है, तो दैट इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देन वी हैव लाइक डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो इसमें this is how the questions are coming and this is how you will be getting the informations with the interlinkage with the syllabus. Then you have government policies and interventions for development in various sectors. Now this is a very broad topic. Are you getting it? ये जैसे ये आपका देखो 10, नाउ क्या आपको ये पता है कि ये भी आपका सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है। नाउ ये देखिए, नाउ स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, नाउ दिस ऑल फॉर एग्जांपल CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे हम तब आप ये इस टॉपिक्स को देखोगे, ऑलराइट। और मे बी अपार्ट फ्रॉम दैट यू व्हेन विल स्टडी सेंट्रल लाइक CIC, okay, then or maybe like NHRC, SHRC or maybe like CBI. No, all these things will be a part of the syllabus. ये सारे हम लक्ष्मीकांत से definitely cover up करेंगे till your point number 9 of the syllabus. But apart from that, जैसे आप देखोगे now this portion is entirely coming out of your लक्ष्मीकांत, ठीक है। ये पूरा जो syllabus है आपका almost for example I can tell you till your this is 16, okay, 16 तक. So you can see that from point number you can see from point number almost 10, okay, from point 10 to 16 this is almost your current affairs. Are you getting it? इसमें आपका लक्ष्मीकांत में इतना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो and then from point number 17 we have what? The international relations part. Are you getting it? We have the international relations part. So international relations will definitely see, but let us now focus on the second part. So पहला जो पार्ट है आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन ऑफ सिलेबस से के साथ ही रिलेशन है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं वही पूरा पार्ट, that is from point number 1 of your GS2 syllabus to point number 9, okay, we have it till लक्ष्मीकांत, ठीक है। और ये सारे पोर्शन हम लक्ष्मीकांत से बहुत बढ़िया से कवर करेंगे, ओके। एंड लेकिन इसमें हम सिर्फ नॉट ओनली लक्ष्मीकांत बट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव हम आपके साथ आपको वो सारे जैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किया, तो वो सारे पॉइंट्स आपको न्यूज़पेपर से भी इंटर रिलेट करना पड़ेगा। और आपको जब न्यूज़पेपर से इंटर रिलेट करोगे तभी आपको इस हर एक पॉइंट का डिटेल्स में आपको समझ में आएगा, ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ द सिलेबस,
ऑल राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट अस नाउ सी सपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस. बढ़िया से समझिए इस पॉइंट को कि गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसीज है और गवर्नमेंट क्या इंटरवेंशंस लेते हैं किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए. ठीक है, तो आपको पता है कि वेरियस सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर में, चाइल्ड राइट्स के सेक्टर में, ठीक है, या फिर एलजीबीटी राइट्स के लिए, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी लाने के लिए, या फिर वॉट एवर इट इज़, ओके, और मे बी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और मे बी इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट. ठीक है, ये सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट क्या इंटरवेंशंस ले रहे, किस टाइप ऑफ पॉलिसीज ला रहे, और जब ये पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन गवर्नमेंट इज डूइंग इट, ओके, what are the issues that are arising out of the design and the implementation. Now this is the topic. ठीक है, तो ये आपको, now for example if you are reading any topic from the newspaper, now you should know that now what are the things that can we relate with this part of the syllabus. बहुत ही important है, ठीक है, you cannot miss this part. So now you can see that, let us see suppose government policies and interventions. ठीक है, तो इसको हम खोलते हैं और आप देखिए अभी इसमें suppose this is the topic government policies. ठीक है, इंडेक्स में हम जाते हैं इसके अंदर और आप देखिए इसमें फॉर एग्जाम्पल वी हैव, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सेक्शन 2 ऑफ आधार. तो क्या आधार एक गवर्नमेंट पॉलिसी है? बिल्कुल है. ठीक है, तो टॉपिक को आप देखिए कि इसका इंटरवेंशन और इसका पॉलिसीज में इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, इश्यूज क्या है, इश्यूज अराइजिंग डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, तो आपको इश्यूज पता होना पड़ेगा. आधार आपने पढ़ लिया, या फिर आपने एमजी नरेगा पढ़ लिया, या फिर आपने फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत स्कीम पढ़ लिया, ठीक है, या फिर एनी अदर स्कीम ऑफ असम, बट व्हाट आर द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको पता होना पड़ेगा बिकॉज ये सिलेबस का लाइन है. तो इसलिए आप देखिए आधार एक्ट गिव्स अनब्रिडल पावर्स, तो दिस इज अ इशू. स्किल इंडिया मिशन टू बी सक्सेसफुल नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट. तो हम स्किल इंडिया मिशन का भी इश्यूज देखेंगे और गेटिंग इट. तो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास शारदा प्रसाद कमिटी रिकमेंडेशन है स्किल इंडिया. नाउ यू नो दैट स्किल इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. स्किल इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सी दिस. बट जब हम स्किल इंडिया पढ़ रहे हैं तो स्किल इंडिया को पढ़ने के टाइम पे क्या हम शारदा प्रसाद कमिटी रिकमेंडेशंस को देखते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The government's plan to roll out an extensive social security plan for workers, okay, might prove to be a white elephant. ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी का चैलेंजेस, देन डेथ पेनल्टी, देन नेशनल पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, देन यूरोपियन कमीशन दैट बैलेंसेस द फ्री स्पीच एंड अकाउंटेबिलिटी. दिस इज ऑल्सो इशू, राइट. Then Aadhaar is again coming. Then अपनी धरोहर अपनी पहचान. Now these are specific schemes, for example. No, we'll be studying all these schemes separately. ठीक है, तो so the data collection के ऊपर जो challenges India is facing. Now biofuels के ऊपर, ठीक है. So as per this we'll be discussing India's drone use policy. This is also very important. Electric vehicles के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, ठीक है. Then quality medicines, especially at the time of COVID-19. National digital communication policy. Now consumer protection bill policy. ठीक है. So all these things. देन ECR कैटेगरी ऑफ ऑरेंज पासपोर्ट. नाउ ये सारी चीज़ें क्या है आपका पॉलिसी. नाउ इस टॉपिक ऑफ सिलेबस से आपको रिलेट करना पड़ेगा. तो ऐसे जब भी जितने भी पॉलिसीज आप देखते हो उसका पॉइंट्स, ओके, उसको नोट डाउन करना आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिकॉज समटाइम्स वी माइट मिस सम पॉलिसीज, ओके. सो बट it is also your responsibility to keep on covering that, and that is why I continuously keep on asking you that please keep on reading the newspapers, because इस type of question, इस type of topic से जब question आएगा, so you should have some good grasp, okay, on the basic understanding, and इसके ऊपर कुछ भी अगर question आता है तो you should be very comfortable in answering these questions. Then जो important part है about that discuss about your development processes, ठीक है. तो इसमें आप डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ NGOs. नाउ अभी तो इस साल तो आपका COVID-19 का काम पे NGOs का क्या रोल था, ऐसा एक मैंने क्वेश्चन दिया भी था टू सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, ओके. सो रोल ऑफ NGOs एंड SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन, अदर, तो इनका क्या रोल है, तो इसके ऊपर भी आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा. एंड सिमिलरली यू कैन सी दैट वी ऑल्सो हैव द कॉन्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. अच्छा, सो NGOs का आई थिंक वी हैव नॉट येट मेड, सो विल मेक इट वेरी सून, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी now the other lecture for other point that is about the welfare schemes. Now you know that we'll be covering the schemes in great details, all the schemes, that to department wise. Education के लिए अलग से करेंगे, health के लिए अलग से करेंगे, ठीक है, science and technology. So we need to know all the welfare schemes for vulnerable sections of the population, ठीक है, for example the elderly citizens, all right, for the unemployed people, or for the women
कैटेगरी ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सो ये सारे हम सेंटर और आसाम का भी हम स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव इसमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना पड़ेगा, बिकॉज नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हैज़ बीन, okay, it has been constituted to protect the core principles, okay, which are highlighted in the constitution, to protect and preserve the, okay, or maybe to protect the people belonging from different sections against the atrocities that are being done against the people coming from SC or maybe ST, okay, or from other कम्युनिटीज़ और सेक्शंस ऑफ पीपल। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा। तो ऐसा रिलेटेड कुछ भी अगर आता है तो यू शुड read those news, ठीक है। So because many people you keep on asking me that how to know that which news is important, so for that you now I think you have realized the importance of the syllabus, because if you know the syllabus then it will become very easy for you to grasp the important news, then you will not be in a doubt that which news to read and which news not to read. If you are able to relate any news with any part of the syllabus, then that news is very very important from exam perspective. आर यू गेटिंग इट? सो लेकिन उस चीज़ के लिए अभी आप तो हमेशा सिलेबस सामने नहीं रख सकते हो, तो दैट इज़ वाई यू नीड टू हैव द सिलेबस इन योर माइंड, एंड दैट इज़ वाई आई टेल यू द मोमेंट यू आर रेडी, यू आर थॉरो विद द सिलेबस, योर 20 to 30% प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट डन, okay. So that is why please go through the syllabus every day, and I have already told many of you that for the next 6 months every half an hour, okay, right from the when you begin your day, just start your day with your syllabus for half an hour and just go through each and every point, ठीक है। अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि हर एक पॉइंट, जैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर मैंने आपको बोला, दैट टर्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ आप क्या क्या रिलेट कर सकते हो, यू कीप ऑन थिंकिंग, ओके, वॉट एवर यू रीड। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी में हम आपको कुछ पढ़ा रहे थे, उसमें आप क्या क्या रिलेट कर सकते हो, प्लीज लिसन टू दैट पार्ट, ओके, प्लीज थिंक एंड इंटर रिलेट विद डिफरेंट सिलेबस, different parts of the syllabus. Then in point number 13 you can see that we have issues relating to development and management of social sector, services relating to health, education and human resources. तो इसके ऊपर तो definitely बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, right? जैसे आप issues relating to, you can see, I will show it to you, for example this is the topic, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो index section में, for example we have this so many like points under this, right? So you can आप देख सकते हो even regulating school fees, ठीक है। अभी जैसे आपको प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ स्कूल आसाम में एक न्यूज़ आया है, राइट। देन एक कोविड-19 के टाइम पे आपका ये भी न्यूज़ था कि रेगुलेशन ऑफ फीस, ओके, हर प्राइवेट स्कूल्स को इतना परसेंटेज, नो दैट इज ऑल्सो न्यूज़ दैट यू नीड टू रिलेट विद दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक, बिकॉज इसमें देख सकते हो कि इश्यूज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, एडुकेशन, तो क्या वो न्यूज़ नहीं है? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स के साथ अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू रिलेट विथ द ह्यूमन रिसोर्स, देन उसमें भी आपका बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ, फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ राइटली एक्लेम टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, आर यू गेटिंग इट? तो अभी ड्रग्स एंड वैक्सीन के ऊपर तो डेफिनेटली कोविड-19 के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप करें, तो इसमें देखिए आप कैसे आप रिलेट करोगे इस चीज़ को विद द इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सेक्टर, ठीक है। देन पोटेंशियल ऑफ मोबाइल हेल्थ, एम हेल्थ सर्विसेज, ये भी है। देन इंडिया वुमेन आर बेस्ट प्लेस टू सर्व ग्रासरूट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, देन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एजुकेशन पार्ट, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ओपन टू रेक्टिफाइड मेडिकल एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन स्विफ्ट लिटरेसी लेवल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, ये सब क्या है? ट्राई का NGT, ठीक है। ये सारे आयुष्मान भारत में आपको बोल रहा था, ठीक है। देन मास कॉपिंग एंड क्वेश्चन पेपर लीक्स जो होता है, ठीक है, डीप रूटेड, तो इसके साथ अभी जैसे सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आर यू गेटिंग इट, जो अभी आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बनाया गया, फिर आपका एक स्किल यूनिवर्सिटी भी आया था, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें अभी किस पोर्शन के साथ रिलेट करोगे आप? एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट इज व्हाट, ह्यूमन रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो ये सारे इशूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, आर यू गेटिंग इट? सो इसको डेफिनेटली आपको रिलेट करना पड़ेगा। नाउ अगर आप ये डेली बेसिस में सिलेबस नहीं पढ़ोगे, डू यू थिंक इतना बड़ा एक सिलेबस, इतना वास्ट एक सिलेबस आप एक दिन में कैप्चर कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। बट आई कैन गारंटी ऑन वन थिंग कि आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपने एक बार सिलेबस देखा और 2-3 महीना आपने सिलेबस खोला ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सिलेबस एवरी डे आपको पढ़ना है, जब तक ईच एंड एवरी पॉइंट आपका दिमाग में याद क्यों नहीं रहता है। ओके, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सिलेबस को पढ़िए,
सिलेबस को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए सिलेबस को, ठीक है, और रिलेट करिए न्यूज़पेपर्स के साथ, स्टैटिक पोर्शन ऑफ सिलेबस के साथ, हमारे जो हैंडआउट्स है, क्लास नोट्स है, उसके साथ आप प्रिपेयर करिए, ठीक है, और इंटर रिलेट करिए बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस. Then you can see issues relating to development and management of social sector, service relating, ठीक है, और हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ये थोड़ा रिपीट हो गया. देन इशूज रिलेटेड पॉवर्टी एंड हंगर विद एम्फेसिस ऑन असम, ठीक है. तो एपीएससी कॉपी करते हैं तो आप देखिए, एपीएससी कॉपी करते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट अगेन सी दे हैव जस्ट कॉपीड इट, ठीक है. तो इस पॉइंट को इशूज रिलेटिंग डेवलपमेंट उन्होंने फिर से दोबारा इसमें डाल दिया है, बिकॉज उनको ये चीज़ ऐड करना था, इशूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर विद एम्फेसिस ऑन असम, बट उन्होंने क्या किया, ये पोर्शन भी वहाँ से कॉपी कर दिया. एंड दिस इज ऑन द वेबसाइट, वी हैव डाउनलोडेड इट डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द, यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट ऑफ द एपीएससी. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कम ऑन, यू शुड नॉट बी डूइंग लाइक दिस, ओके. इवन आई हैव नोटिस दिस वन, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस, बिकॉज उन्होंने यूपीएससी से कॉपी किया है, राइट, ओके. उनको इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 13 में उनको ये ऐड करना था, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट देयर इन यूपीएससी, बट उन्होंने क्या किया, पॉइंट नंबर 13 को भी इसी में कॉपी पेस्ट कर दिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज अ वेरी बैड, लाइक यू नो, अ वेरी बैड इमेज और अ वेरी बैड इंप्रेशन दैट वी आर सेटिंग अप, ओके. एंड दिस शोज द, और देखिए, आप देखिए, किसी का टाइपिंग मिस्टेक हुआ, कॉपी पेस्टिंग मिस्टेक हुआ, दैट इज अंडरस्टूड, बट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देयर शुड बी नंबर ऑफ न्यूमरस राउंड्स ऑफ व्हाट, numerous rounds of verification, okay, and the topmost officers should look after these things. Verification होना चाहिए. तो where is the verification? That shows that there is no verification round. Clerical level में copy paste हुआ और वहीं से upload हो गया उस website में. It is such a negative impression that sets up, and this is why the, like we people always play the victim card. ठीक है, flood में national media is not covering our problem of flood, no problem. Let them not cover it up. Let us be empowered. Let us create such a situation कि वो लोग मजबूर हो जाएंगे हमें कवर करने के लिए. Why to cry? Why should we always play the victim card कि हमें cover up नहीं कर रहे? मत करो, ठीक है. Why not empower ourselves? ओके, और फ्लड को कवर नहीं करके इसी चीज़ को पॉलिटिसाइज करते लोग, इसी चीज़ के ऊपर लोग पैसे उठाते, ठीक है. उससे अच्छा आप खुद को ऐसा काबिल बनाइए कि नेशनल मीडिया क्या, इंटरनेशनल मीडिया आके आपको कवर करेंगे, ठीक है. और एक क्या फ्ुटबॉल का टीम आके आपको कवर कर दिया और उसी को लेके सारे असम में तो 2-3 दिन वही चलता रहा कि एक फुटबॉल का टीम ने हमें हमारे असम फ्लड के लिए ये मैसेज भेजा. ठीक है, इट्स गुड इफ दे हैव सपोर्टेड अस, बट द पॉइंट इज वाई टू वेस्ट 2-3 days टाइम पीरियड उसी चीज़ को लेके. मीडिया तो उसी 2-3 दिन में वो सब everyone was busy updating their status only with that thing only. क्या हम इतने खाली बैठे हैं कि 100 में से एक जन ने हमारे इसको, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, वो दैट वाज आल्सो पब्लिसिटी स्टंट, यस और नो. सो द पॉइंट इज यू मेक योरसेल्फ दैट मच कैपेबल दैट एवरीवन विल कम एंड फोकस यू, ओके. प्लीज स्टॉप क्राइंग, दिस इज नॉट फॉर यू बट दिस इज फॉर एवरीवन, ओके. ऐसा, और यही चीज़ देखिए, इतना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इसमें वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. एंड नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट एक क्वेश्चन पेपर में भी लास्ट टू लास्ट या प्रीलिम्स में भी यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था एंड दे फॉरगॉट टू गिव द ऑप्शंस ओनली. सिर्फ स्टेटमेंट्स को ही बना के उन्होंने क्वेश्चंस छोड़ दिया और उसमें सारे एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था, सारे ऑप्शंस वे करेक्ट, एक्चुअली सारे स्टेटमेंट्स वे करेक्ट, ठीक है. ऑप्शन वुड हैव बीन ऑप्शन डी, ABCD ऑल आर करेक्ट, और वो ऑप्शन ही दिया नहीं. तो आपके पास एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड आउट ऑफ दैट, तो इसलिए उसमें ग्रेस मार्क दिया गया था. एंड दिस इज द व्हाट, दिस शोज दैट व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स हु आर सिटिंग देयर, okay, and who are setting the paper or maybe who are conducting the exam, ठीक है. ऑफिसर्स तो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे. so definitely this has to be like like discouraged and हमें definitely ये सारी चीज़ें उठाना चाहिए, okay. anyways, now these are the things actually which should come up in our media, okay, but these things are not coming up, okay. Now you can see that media will be now talking about for the next 3-4 months that will Ajmal be the CM of Assam. यही दिखाएगा आपको और आप लोग देखोगे भी. आप मतलब majority of the section of people of Assam will Ajmal be the next CM of Assam and 90% of people will watch that show. लेकिन अगर ऐसे एक चीज़ लेके आएंगे मीडिया में तो नहीं देखेंगे, 10% लोग देखेंगे या 5% लोग देखेंगे.
Okay, so it is to be our people of the state are to be blamed. Okay, हम आप खुद को blame करना पड़ेगा because of this lacunas and because of this very poor attitude in our work culture. ठीक है, so next topic, let's move ahead. Important aspects of governance, transparency, accountability. Now these are very important. इसके लिए ARC reports भी थोड़ा सा cover up करना चाहिए, which I'll be also covering it my students. ठीक है, in our online lectures only. So the point here that is you need to highlight is about e-governance. Governance के ऊपर एक बहुत बढ़िया ARC report है. ठीक है, then we have the models, different models, success, limitations, potential, citizen charters, transparency, accountability and institutional and other measures with emphasis on Assam. तो इसमें असम को भी ऐड किया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. आप भी इसमें देख सकते हो कि इन दिस टॉपिक वी हैव मैनी डिफरेंट लाइक टॉपिक्स, जैसे ई गवर्नेंस एंड एप्लीकेशंस, इसको मैंने अलग से इसमें डाल दिया है. ठीक है, तो ई गवर्नेंस में आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस ऑन इट्स ओन इनहेरेंट लिमिटेशंस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट if we see other topics like for example important aspects of governance and transparency. ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं for example this is the important aspects of governance and transparency and accountability. ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है. फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018 में काफ़ी न्यूज़ में था, MG नरेगा. ठीक है, देन ये सारी चीज़ें, फेसबुक डेटा कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है, ये सब गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स है. ठीक है, सोशल एटीट्यूड. ठीक है, देन लीगल टूल्स, फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम, फेक न्यूज़ आपको, सोशल ऑडिट. ठीक है, देन आधार का, वीवीपैट मशीन्स. ठीक है, ये सारे गवर्नेंस का टॉपिक, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. ओके, देन ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी कवर्ड इन ग्रेट डिटेल. स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, ये सब गवर्नेंस रिलेटेड है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे. तो आपको भी ये सब चीज़ें रिलेट करना पड़ेगा गवर्नेंस के साथ. ना गवर्नेंस में कुछ भी आ सकता है, राइट ना. गवर्नेंस का क्लासेस भी आपका स्टैटिक पोर्शन में ही होगा, अलग से एक्स्ट्रा करके. ठीक है, तो ये बढ़िया से आपको पढ़ना है. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट. तो इसमें आप देख सकते हो कि आई थिंक इसका शायद हमने अभी तक कवर अप नहीं किया, NGOs एंड, फिर भी मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ. हाँ, इसमें है. ठीक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड प्रेशर ग्रुप्स अलग से मैंने इसमें डाल के रखा है. सो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है. ठीक है, इसलिए वहाँ पे नहीं है. आप देखते हो मास मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन. ठीक है, इसमें क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पुलिस इन प्रिवेंटिंग सच इंसिडेंट्स. तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी आने से एटलीस्ट आपको डेफिनेटली आइडिया होना चाहिए. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पब्लिक सर्विसेज, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विसेज. ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ हम कवर करेंगे बहुत डिटेल्स में. ठीक है, इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया हैवन टेकन प्लेस. तो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा. ठीक है, कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आएगा. ठीक है, लेटरल एंट्री आपको पता है, नाउ इंडिया इज डिस्कसिंग अबाउट लेटरल एंट्री. ठीक है, अगर पता नहीं है तो वेट फॉर द क्लास. लेटरल एंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, देन फंडामेंटल चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू ब्रिंग इन इंडियन सिविल सर्विसेज. आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर. ठीक है, ये सारी चीज़ें, डिफेंस पॉलिसी, लेटरल एंट्री. ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टॉपिक जो है आपका प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है, दिस प्रेशर ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल, ये भी आपका सिलेबस में आप देखिए यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द प्रेशर ग्रुप्स, आई विल शो इट टू, ये GS2 में ही है. ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा था NGOs तो हो गया था, राइट. मैंने आपको NGOs, हाँ मैंने आपको ये लिखा, प्रेशर ग्रुप्स इज ऑल्सो टॉपिक इन योर सिलेबस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी. ठीक है, ये सिलेबस का भी आप देख सकते हो. इसमें प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस. तो इसमें आप देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है. इसको हमने ऑलरेडी खोला है फाइल को. तो आप देखिए इसमें फॉर एग्जाम्पल हाउ इम्पोर्टेंट इज अ पार्टी सिंबल फॉर पॉलिटिकल पार्टी. नो, दिस इज नॉट देयर. ओके, what is a pressure group, analyze their role in development, for example. ठीक है, so for example discuss critically the magnitude and nature of the growing influence of business houses in Indian elections. So this is also like pressure group, right, business houses. ठीक है, lobby making, अदानी आके अभी गुवाहाटी का एयरपोर्ट ले लेगा, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो उसमें वो उसी के ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, क्रिटिकली आप एनालाइज करना कि कितना मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस हाउसेज इन इंडियन इलेक्शंस. तो अदानी को मिल रहा है तो ऑब्वियसली असम इलेक्शन आ रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? इलेक्शन से पहले एक एयरपोर्ट मैनेज, मतलब कितना करोड़ों का बिजनेस है वो, अदानी को दे रहा है. तो क्या अदानी 2021 असम इलेक्शन में रोल प्ले नहीं करेगा? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, इफ़ यू आर स्मार्ट ना, यू हैव अंडरस्टूड दिस. और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है. लेकिन आपको यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं लिखना यहाँ पे.
जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आप बीजेपी का हो, कांग्रेस का, जो भी हो, उस पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है इफ़ यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, अदरवाइज आप जाके पॉलिटिशियन बनो, आप इलेक्शन लड़ो, ठीक है। सो द पॉइंट इज, सो दिस टाइप ऑफ, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुवाहाटी, ठीक है, ऑफ इंडिया के अंदर गुवाहाटी का जो गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस कितना है, सो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें आपको देन आंसर क्या है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए फिर कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए। हमारा बैलेंस आंसर क्या होगा, सो रादर देन प्राइवेटाइजिंग वी शुड कॉर्पोरेटाइज इट। सिमिलरली द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज वी स्टडी, उसमें भी हमें वी शुड फोकस ऑन व्हाट, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, नॉट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सो बढ़िया से पढ़ेंगे हम वो सब चीज़ें बाद में, तो वीक इंस्टीट्यूशंस एंड, ठीक है, तो ऐसे सारे नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग आई गेस। सो अगर आपने अभी, आपको तो ये गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट वाला न्यूज़ तो सबको पता है, तो क्या आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी, तो दिस इज अबाउट बिजनेस हाउसेस, इनफॉर्मल एसोसिएशन है ना, वो अदानी का एसोसिएशन क्या फॉर्मल है, वो रजिस्टर्ड, मतलब ठीक है, वो आके एक लॉबी बनाते हो तो इनफॉर्मल होगा ना वो। देखिए इनफॉर्मल एसोसिएशन भी सिलेबस का टॉपिक में है। आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों को पता था इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड रोल इन पॉलिटी के, ये सिलेबस पॉइंट नंबर 6 ऑफ GS2 के साथ हम ये गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट वाला न्यूज़ इसको कनेक्ट करेंगे और विल टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स। GS2 है, पॉलिटिक्स तो रहेगा उसमें, और इलेक्शन। नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें सिलेबस कैसे अंडरस्टैंड करना है, एंड दैट इज़ व्हाई आई टेल यू। सपोज मान लीजिए इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड रोल इन पॉलिटी क्वेश्चन आ गया, अभी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप सोच रहे हो क्या लिखूँ क्या लिखूँ। अगर आपको सिलेबस पहले से पता था तो आप तो गुवाहाटी वाला अदानी वाला चीज़ आप लिख सकते हो इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, राइट। तो क्या उसके लिए अलग से प्रिपरेशन चाहिए, नहीं चाहिए ना। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन के ऊपर क्या 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 क्या, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या क्या, व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ टू राइट। व्हेन यू विल रीड with in relation with the syllabus, definitely you will understand it in a great details. So the point is what I am trying to make is, बहुत important है syllabus पता होना। अगर syllabus नहीं पता है ना तो आपका preparation is not in the right track, and that is why I felt the need to bring the syllabus series in discussion with all of you, and that is why I have brought it, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी, ये भी हमने आपको दिखाया है, एंड विद दिस विल बी एंडिंग आवर व्हाट, will be ending our GS2 syllabus डिस्कशन पार्ट, बिकॉज IR जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे आपके साथ, और IR मुझे अलग से करना है बिकॉज IR में थोड़ा और आधा घंटा टाइम लगेगा इसमें, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट इन क्लोज टू 1 आवर 57 मिनट्स हो गया GS2 का डिस्कशन में, ठीक है। और आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेच द डिस्कशन वन लेक्चर टू सो लॉन्ग, ओके। 45 मिनट्स एक्चुअली आई कीप अ टारगेट टू कंप्लीट ऑल माई लेक्चर्स, बट इसमें 1 घंटा हो गया बिकॉज GS2 सिलेबस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। सो जो IR है उसमें भी हमें आपको, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें इन डिटेल्स जाके डिस्कस करना है विद एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू टुमारो in a second part of GS2 discussion. So I hope this will definitely benefit you. Please do give me the feedbacks because this is a very new and innovative like thing that I have brought forward, ठीक है। syllabus normally ऐसे discuss नहीं करते हैं इतना details में, with examples, okay। देखिए syllabus discuss हो सकता है लेकिन with example, okay, with example discuss किया मैंने आपके साथ, that too interrelating many editorials of the newspaper and showing it to you that what type of topics you need to at least cover up, or you need to have a basic idea, all right, with what, with your syllabus and the different topics of syllabus, okay। So I hope you will really be benefited. Please do give me some feedbacks about these sessions, okay। And apart from this, again a promise to all of you, I'll be also discussing the past year questions, many past year questions I'll be discussing topic wise in the upcoming time period, okay। Enjoy studying, stay safe, revise, practice and write, okay। These 3 are the fundas if you want to crack this exam, okay। Keep on studying. If you have any doubt, do write to me. See you in the next lecture, that is tomorrow. Till then, bye bye and good night.